Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 2 and this chapter is about the chapter tissues, and in this chapter today my topic to discuss are simple permanent tissues. Simple permanent tissues क्या होते हैं? Simple permanent tissues in हम लिखेंगे simple permanent tissues in plants में. Those simple permanent tissues are parenchyma, that is the collenchyma, and third one is the sclerenchyma. These are the three simple permanent tissues. These simple permanent tissues are found in plants. They are found in different parts of the plants. Parenchyma देखेंगे इसमें parenchyma. ये जो parenchyma tissue है, these are simple in structure, simple है, और इनमें they are made of this is made of living cells. तो इनमें जो इन सेल्स की बात हम कर लेंगे, they have the cell wall, and cell wall is made of composite of thin cellulose, thin cellulose के बने हुए होते हैं. और देखा जाता है इनमें जो साइटोप्लाज्म इनके सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, and they have the nucleus and large vacuoles are cell vacuoles, large vacuoles भी पाए जाते हैं. तो ये जो है parenchyma tissues, ये सेल के कहाँ पाया जाता है? They are found in the stem, they are found in the roots, they are found in the leaf, these are found in the fruits में, हम कहेंगे buds में, flowers में पाए जाते हैं. This is the most common type of tissue which are found in the plant body, and very common this type of plant tissue, parenchyma tissue. These are simple living cells. They are made of living cells. They are living. I mean that parenchyma are the living in condition. They have the cell wall. Cell wall is composed of thin cellulose and dense cytoplasm. They have they have nucleus and is at the side, and they are large vacuoles. और हमने देखा these are the parts where they are found in the plants. Stem के part, root के part में, leaf के part में, fruits, buds के part में, ये parenchyma tissues के ही बने हुए होते हैं. parenchyma जो tissues है इनके अगर हम cells की बात हम कर लेंगे, they are isodiametric. They are isodiametric in shape. उसका मतलब है हर एक सेल एक जैसी दिखती है, और इनमें these cells they are isodiametric in shape, और इनमें इनके बीच में intracellular space होती है. Intracellular, they have presence of intracellular space. They have the presence of intracellular space. तो ये अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करें, ये सेल्स ऐसे ये ओवल फॉर्म होता है, समटाइम दे आर पॉलीगोनल सिलेंड्रिकल इन फॉर्म. तो इन सेल्स के बीच में अगर हम देखेंगे डायग्राम के तौर, हाँ, तो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, सब एक जैसे शक्ल में होते हैं, साइज में, शेप में, इनमें. तो इनमें हम देखेंगे देयर आर द स्पेस. ये देखिए जो स्पेस रहती है इनके बीच में, ये स्पेस इनको कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस. they are just found intracellular space, and they have the this is the cell wall, this is the cell membrane. मैं एक सेल का बताता हूँ. This is the cell membrane, and there is the central vacuole and nucleus in the center, and they have the cytoplasm. I described the one of the cell in this. This is the
तो यहाँ देखेंगे व्हाट इज दिस, इट इज सेल वॉल, व्हाट इज इट इज द सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज दिस, इट इज द न्यूक्लियस, ये यहाँ पे व्हाट इज इट इज द वैक्यूल, सेल वैक्यूल। हाँ, तो ये मैंने एक डिस्क्राइब किया है। एंड दे हैव द यस दे हैव द साइटोप्लाज्म, CYT लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, दे हैव द साइटोप्लाज्म हियर। तो इस तरह के ये सेल्स होते हैं और आप मतलब इस तरह अरेंज होते हैं, दे लीव बिहाइंड द स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस। खासतौर हमने देखा ये स्पेस जो होता है इंट्रासेलुलर स्पेस, ये ज्यादातर खास तौर जो होते हैं, एक मिनट, खास तौर के पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। नाउ देयर इज द एज पर द फंक्शन इज कंसर्न्ड, इनके काम के मुताबिक पैरेन्काइमा कुछ है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा कुछ इनमें से है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा काइमा। तो हम कहते हैं कि जो कुछ क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा के ही मॉडिफिकेशन है काम के तौर पे, दे हेल्प, दे कंटेन द पिगमेंट इन their cells contain the pigment which help in the photosynthesis, therefore they help in photosynthesis in plants। तो ऑब्वियसली ये पाए जाएंगे लीफ और स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट में। एरेन्काइमा देखा जाता है ये खासतौर एक्वेटिक प्लांट्स में दीज टिश्यूज आर फाउंड। एरेन्काइमा में ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है वो ज्यादा होती है ताकि दे एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी मिले, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। Erenchyma is special type of tissue. They are just the modification of the parenchyma. They are known erenchyma, जो उनमें जो स्पेस रहती है इंट्रासेलुलर स्पेस ये बड़ी रहती है, ज्यादा की ज्यादा हवा इनमें, these are filled, these spaces gaps are filled by the most air, then they remain afloat on the surface of the water. Such tissues are known as एरेन्काइमा। ये काम के तौर पे ही इनको मॉडिफाई किया गया है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। और है और भी इनमें है प्रोटोकाइमा, प्रोटोकाइमा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ एरेन्काइमा मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, दे हेल्प अस इन द स्टोरिंग ऑफ excess glucose into the starch, को excess food इनमें पाया जाता है। These are the three special modifications of, as per the function is concerned, parenchyma are still known as the, some are known as the chloroenchyma, some are known as the erenchyma, some are known as the protokaima. They help us in the storage of the food. ये थे टिश्यूज। व्हाट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ द पैरेन्काइमा लाइक टिश्यू, व्हाट इज द प्राइमरी जॉब, इनका क्या खास काम रहता है, पहले क्या दर्जा का काम रहता है। दे हेल्प अस इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जैसे कि प्लांट सिंथेसिस ग्लूकोज, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर रहता है स्टार्च के सूरत में, तो सेल्यूलोज के सूरत में, फैट्स के सूरत में, तो प्रोटीन्स के सूरत में स्टोरेज होती है। और दीज सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, आर द रिजर्वर्स ऑफ द स्टोरेज फूड, स्टोर्ड फूड के रिजर्वर्स होते हैं, इनका ये प्राइमरी जॉब होता है। और सेकंड, अगर हम, दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस लाइक द क्लोरेन्काइमा एंड दे स्टोर द फूड मटेरियल्स। दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ पैरेन्काइमा, that they store the food। हम देखते हैं कि अगर हम स्टेम पार्ट के कॉर्टेक्स पार्ट का, कॉर्टेक्स रीजन, इपिडर्मल रीजन, या उसका पिथ जो होता है, हाँ, या वेस्कुलर जो बंडल होता है, वेस्कुलर टिश्यू, वो भी पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं। तो ये था सारा के सारा किसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा के और भी काम रहता है, अगर हम बात करें, दे हेल्प अस इन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है व्हेन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, और पानी सेलों के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से एक
प्रेशर डेवलप होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रेशर को इक्विलिब्रियम में रखना है, बैलेंस में रखना है। को ऑल्सो पैरेन्काइमा ये भी देखा उस प्रेशर को रिड्यूस करता है, उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है उस चीज को। दे आल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल्स या बिटवीन द सेल्स। तो हम ये चीज है इसकी हम बात करें काम के तौर। अब है जो कोलन काइमा है, कोलन काइमा जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलन काइमा। कोलन काइमा जो है ये भी सिंपल दीज आर आल्सो द सिंपल परमानेंट टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स। तो कोलन काइमा हम देखते हैं दीज आर cylindrical in shape, polygonal, हाँ, या कभी कभार सिलेंड्रिकल इन शेप, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड। और इनमें जो सेल होता है, दे सेल्स हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस प्लस लिग्निन इनकी होती है और कोटिंग कॉर्नर्स पे। तो और इनमें दी सेल्स जो है दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली एक दूसरे के नजदीक होते हैं, कोई स्पेस नहीं होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं इस टिश्यूज में। एंड देयर इज फाउंड नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, और वहां कोई स्पेस नहीं होते सेल के बीचों बीच में। दे आर जस्ट लाइक द अरेंजमेंट ऑफ द टाइल्स, they are compactly arranged, there is no space between these cells within the tissues colon chyma। colon chyma अगर हम देखेंगे they are usually polygonal in form, ऐसे polygonal form में होते हैं, polygonal in form। तो बिल्कुल they don't leave the space behind, तो ये कुछ स्पेस नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। तो इनके जो सेंटर यहाँ ये कोन्स में थिक होते हैं, दे आर थिक एट द कॉर्नर्स, दीज कोलन काइमास आर थिक एट द कॉर्नर्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। तो कॉर्नर्स पे ये थिक होते हैं, ये कॉर्नर्स पे ये सेल्स थिक होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, कॉर्नर्स पे ये सेल्स थिक पड़ते हैं। एंड दीज सेल्स आर ऑफ कोर्स लिविंग, दीज आर आल्सो लिविंग, ये लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं, दे आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, हाँ, अदर राइबोसोम्स, अदर हम देखेंगे अदर ऑर्गेनेल्स पाए जाती है। देखिए ये न्यूक्लियस है इनका, ये हो गया इसका वैक्यूल, हाँ, ये सेल वॉल हो गया, ये हो गया सेल वॉल, इनमें कॉर्नर्स पे लिग्निन थी, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन जो मैंने रेड कलर का बना हुआ है। एक सेल को डिस्क्राइब कर लेता हूं मैं, ये आ गया सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन आपका, इसमें vacuole, it is the nucleus, it is the nucleus, it is the cytoplasm, protoplasm ko, it is the protoplasm here inside the cell। तो ये मैंने एक सेल को डिस्क्राइब यहाँ पे किया है। What is this cell wall composed of cellulose, and at the corner there is a deposition of the lignin, हाँ, lignin की deposition होती है बेटा, lignin की deposition होती है। तो इनमें प्लाज्मोडेस्मेटा गेप्स भी पाए जाते हैं सेल्स के बीच में, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा गेप्स व्हिच अलाउ द मटेरियल टू पास साइड टू साइड। आप देखिए इन तीन सेल्स मैंने बताया देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो इंट्रासेल्युलर स्पेस, देयर इज नो इंट्रासेल्युलर। तो ये जो कोलन काइमा है ये कहाँ पाए जाते हैं? वायर दे आर फाउंड इन द parts, hard parts in plants, they give us the flexibility, rigidity, hardness,
इलास्टिसिटी इन सेल्स के कारण ये वैसे ही टिश्यूज होते हैं. दे आर फाउंड, they provide the hardness, flexibility to the plant parts and elasticity. Their primary job is coloncyma, that they give them mechanical protection. They protect the plant parts by getting the mechanical injuries. Mechanical protection. Also there is a flexibility. They are found in the आपको पता है petole of the leaf. If this is the leaf here, they have the petole here. It is the leaf. और इस leaf में जो petole होते हैं ये, और या स्टॉक ऑफ लीफ कहते हैं, या पिटोले ऑफ द लीफ में, पिटोले ऑफ लीफ में पाया जाता है. या हम कहेंगे जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स क्लोज, यहाँ देखिए क्लोज टू द एपिडर्मस लेयर जो होती है, एपिडर्मस जो कॉर्टेक्स पार्ट जो है क्लोज टू द एपिडर्मस लेयर इन डाइकॉट सिस्टम में they are made up of the coloncyma tissues. और ये पाया जाता है at the base of the branches, ताकि उनमें flexibility at the base of branches of leaves, branches, flowers, fruits के जो base part of the branch होता है वहां पे, क्योंकि इनका they provide the mechanical strength या mechanical protection to the, therefore obviously they are found at the base of the branches, flowers, fruits, buds, and they are found in the petole of the leaf. Cortex region में भी पाए जाते हैं. ये भी देखा गया coloncyma are found around the vascular bundle. We can say the around vascular bundles, which are in the pith of the dicot system या dicot root या dicot leaf की बात हम कर लेंगे तो वहां पे पाए जाते हैं. These tissues are found around the vascular bundles in dicot system root. तो यहाँ ये this type of tissue is found in the plant bodies, plant parts. इनका क्या प्राइमरी जॉब रहता है जो coloncyma का? They help us, they provide the mechanical strength. They have high tensile strength. These tissues have high tensile strength. These tissues have high tensile, मतलब इफेक्ट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते ये टिश्यू. बस तभी तो they give the hardness, protection, extra covering to the plant parts. internal strength भी provide होते इन tissues से, high tensile strength. Therefore their primary job is to provide a mechanical defense to the plant parts to at the base of the branches where there is the load, there is the effect. That effect could be bare. That the coloncyma give the external protection, internal protection. They form the hard parts of the plants. So coloncyma, these tissues, simple permanent tissue, they remain a lifetime in the plant parts. तो कभी कभार देखा जाता है the coloncyma sometimes perform the secondary job, that is these help us in the storage of the food, storage of the important food materials, nutrients, जो कभी कभार भी इस्तेमाल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में स्टार्च ग्लूकोज बनता है और वो एक्सेस स्टार्च फॉर्म में जमा रह जाता है in the coloncyma. Coloncyma also sometimes perform the secondary function. They help us in the storage of the food material in the plant parts. तीसरा जो यहाँ पे हम पहला, मगर इनका काम है to provide the mechanical strength to the plant parts. The mechanical strength. तो इनके सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन है, बट नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस at the corners
at some partly cell wall is composed of the lignin. Then there is the sclerenchyma. स्क्लेरन जो कायमा जो है इसमें देखा जाता है दो टाइप के. दे कैन बी this is the scleritis and there is the fibrous. There are the fibrous and scleritis. These tissue जो है, these permanent tissues, these are made up of the dead cells. These tissues are dead. We can say they are composed of dead cells. क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है सेल वॉल्स पे, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. सेल्यूलोज के मतलब फिर लिग्निन की कोटिंग होती है इनमें, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जिसके वजह से जो सेल वॉल है उसमें क्या आ जाती है शाबाश, उसमें आ जाती है थिकनेस. और जो अंदर के सेल्स होते हैं एट द मैच्योर स्टेज, मैं इनकी बात कर रहा हूं. एट द मैच्योर स्टेज द cells becomes dead, cells becomes dead, and then this is the dead tissues. Dead, they give the maximum hardness. Scleritis इनको कहते हैं हम stone cells. They are commonly known as the stone cells. They give us the most strength. They give the most hardness to the plant parts. Their prime job is to give the mechanical defense, and also they help us in the transportation of material. अगर हम देखेंगे जो स्क्लेरेंकाइमा जो फाइबर्स होते हैं, these fibers are tubular, longitudinal. They are found there is the xylem fibers, phloem fibers. They give the mechanical strength. Also they help us in the transportation. ये नली जैसे काम करते हैं, पाइप जैसे काम करते हैं, पोरस होते हैं ये टिश्यूज, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, इंटरनल हॉलो होते हैं. तो दे हेल्प अस इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. Therefore these fibers you find them in the xylem and phloem vessels in plants में आप इनको पाओगे, इनको फाइबर्स को. स्क्लेरिड जो होते हैं you will find in the shell, जो होते हैं shell of fruits, जैसे कि कोकोनट हो, नट हो, कोकोनट हो या सीड कोट्स में ये पाए जाते हैं. both are the dead cells. They are composed of dead cells. These are the dead tissues. क्योंकि इन सेल्स में मैं दिखाऊंगा आपको डायग्रामेटिकली जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जैसे होते हैं, दिखाएंगे. जो सेल्स होते हैं, these are the cells, and these cells are slightly compact to each other. तो इनमें देखा जाता है इनमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन करती है लिग्निन की. इनमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, मगर फिर इनकी जो सेकेंडरी कोटिंग होती है, सेकेंडरी व्हेन द सेल रीचेस टू द सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन चढ़ती है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन. ये देखिए मैंने मोटा कैसे दिखाया, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ, जिसके वजह से जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो होता है जो इनको लिविंग रख सकता है, फिर ये डेड होते. ये देखिए, ये मान लीजिए फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन आया पहले तो, या इनके अंदर न्यूक्लियस होता सारा के सारा, फिर ये इसको सूख जाता है. इट इज द न्यूक्लियस, इट इज द वैक्यूल, इट इज द साइटोप्लाज्म. मैंने एक सेल दिखाया यहाँ पे. It is the vacuole, it is the nucleus, and it is the cell wall that is composed of cellulose, but there is the extra deposition of the lignin. Lignin continuously cover this cell, and there is the cytoplasm, CYT लिखता हूँ. This is the vacuole, cell vacuole, and this is the cell membrane here, cell membrane, CM, cell membrane. तो ये चीजें आप देखिए.
आप देखिए जो इनमें होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल देयर आर द पिट्स, ताकि मटेरियल का आना जाना हो, या बिटवीन द सेल दे हैव द पिट्स, these cells हमने देखा है। द फाइबर जो वेसल हम देखेंगे या सिक्लेरेटिस देखेंगे, मतलब इसका जो अगर हम एक सेल दिखाएंगे यहाँ पे, एक सेल अगर हम देखेंगे जो स्टोन सेल को कहा जाता है सिक्लेरेटिस को, ये देखिए सेल एक बना मैंने एक्स्ट्रा कवरिंग, ये देखिए इनमें ब्रांच टाइप, ये एक ल्यूमन पार्ट निकलता है, इसके बीच में एक ल्यूमन पार्ट आ जाता है। देखिए इसका जो ल्यूमन पार्ट आया, स्टोन सेल ब्रांचेड है इसका, जो ये सारा की सारा जो है दिस इज नोन एज द ल्यूमेन, इन इट इज द सेंट्रल कैविटी, इट इज एम्प्टी, ये फिर नलिया जैसे काम करता है। जो यहाँ पे ये जो ट्यूब्स होते हैं ये ओपन होते हैं ऑन द सरफेस, दे लीव बिहाइंड द टिप पिटस, दे लीव बिहाइंड द पिटस हियर, then they leave here behind the, this is known pitus, तो यहाँ देखिए फिर ये टिश्यू होता है, they have the wall here, what is this is the A part here, A part ciliate, this is commonly these are known, ये मैंने बना यहाँ पे, बहुत सारे इसके फॉर्म्स होते हैं। तो ये चीज ही जो है यहाँ पे निकलता है, ये पिटस यहाँ पे इनके सरफेस ल्यूमन होता है, ये it is the central, yeah, we can say the cavity which are often remain the empty। तो फिर ये इनका ये काम भी रहता है, they helps in the transportation। आप देखोगे the xylem fibers, they are actually the sclerenchyma tissues, they help us in the transportation of the water, mineral, salt, या जो जहाँ लीवर्स में जो खाना बनता है फिर वहां से लेके वो आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्हीं जरियों से होते हैं। These cells help in the transportation of the food material, these are the dead tissue, sclerenchyma, these are the simple permanent tissue, another example of the simple permanent tissues here, the sclerenchyma, they are actually composed of the sclerated short cells, short sized, oval, cylindrical, they are the filiform, they are the conical, they comes in the variable star shaped, stone shaped, tubular, they are, अगर हम जाइलम फाइबर की बात हम कर लेंगे या फाइबर के बात हम कर लेंगे या ये टिश्यू, they are ऐसे longitudinal होते ये tissues, these are often noticed, they are the longitudinal tissues, on the surface they have the pitus, यही पिटस निकलते हैं, यहाँ पे ये पिटस निकलते हैं, यहाँ देखिए दिस इज द सिक्युलर जाइलम की मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे on the surface they have the pitus, these are the, it is the first part, it is the second part, these are known as the fibers, तो ये compactly arranged होता है, you will found in the vascular bundles, VP in plant parts, आपको पता है what is the job of the vascular bundles, they are made up of these fibers, they help us in the transporting of the materials। I hope you understand about today the simple permanent tissue, simple permanent tissue वो जो होता है, या अगर हम इसकी और एक बात कर लेंगे sclerenchyma, they form the hardest part of the plant, जैसे कि nut shell, coconut shell या जूट फाइबर जो होते हैं वो इन्हीं से बनता है, जिनसे हम रग्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, उनमें जो निकलता है वो धागा यान या कोकोनट जो कॉयर होता है वो इन टिश्यू से ही बनता है, या हार्ड पार्ट्स या फ्रूट का जो बीच वाला जो हार्ड पार्ट है, मैंगो का जो सीड होता है उसका जो सीड कोट होता है वो भी इन्हीं सेल्स का बना होता है sclerenchyma, they form the toughest part in the plants and protective part, they give the most hardness to the plants, जो प्लांट का हार्ड पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं सेल से, इन्हीं टिश्यू से बने हुए होते हैं sclerenchyma काइमेटस टिश्यू से।
So I hope you understand about the simple permanent tissues in plants. These are of 3 types. आगे हम और भी इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जो हमारे पास अब है complex permanent tissue. They are also known as the permanent vascular tissues, that is xylem and phloem, which help us in plants in the transportation of material. आगे नए लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.